Hello viewers, Namaskar. I welcome you all to a very special on the new Education Policy 2020. It's a privilege for all of us to have our Honorable Vice Chancellor Professor Nageshwar Rao as the resource speaker for today's session. So I welcome you to this session. Professor Rao is a renowned management teacher. He is known for his educational leadership. At present, he is the Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University. He is in charge of as Director of Indian Institute of Advanced Studies, Simla. Also in charge Director General of Hindi Directorate. He has served as the Vice Chancellor of Uttar Pradesh Rajasi Tandon Open University, also as Vice Chancellor of Uttarakhand Open University, Haldwani. He is a renowned expert in the field of open and distance learning and also online education. His involvement in the framework of NEP 2020 is well known across the country. His leadership acumen has taken IGNOU to new heights in terms of providing equitable and quality higher education both nationally and internationally. So today we are privileged to him as our resource speaker, and he will be talking to us on the new Education Policy 2020 and the reforms in higher education. As most of us already know that new Education Policy 2020 has come into picture on 29th July 2020. It is resting on 5 pillars, that is affordability, accessibility, quality, equity and accountability in order to provide continuous learning. Higher education plays a major role in the entire education system as India is moving towards the digital economy and a online based education society. So higher education reforms in line with new education policy plays a major role. As our Vice Chancellor is involved in policy framework formulation, we will be very happy to listen to him on various aspects of NEP 2020 and the reforms of higher education. Sir, we will be listening to your lecture, then we will be taking few question answers. All our viewers are requested to post their questions on the Swayamprabha live portal. Sir will be completing his lecture, then he will be responding to the queries. Sir, it's over to you. नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और पूरे देश में और अन्य देशों में भी इस नीति के बारे में, इस नीति के क्रियान्वयन के बारे में कई जिज्ञासाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह 6 दिन का अभिमुखीकरण कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। इसमें लाइव सेशंस के साथ साथ स्टडी मटेरियल, वीडियोस, डिस्कशंस और परीक्षा, सारी चीज़ों का प्रावधान रखा है। और भारत सरकार के जो 3 प्रमुख पोर्टल्स हैं, समर्थ पोर्टल जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्वयं पोर्टल जिसमें वीडियो और मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द मटेरियल उपलब्ध है, ई कंटेंट्स, और स्वयं प्रभा जिसके द्वारा हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस बातचीत का आशय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में यदि कोई बाधाएं आ रही हों तो उस पर हम लोग बातचीत करें। यह एक ऐसी नीति है
जिसके क्रियान्वयन से सभी को लाभ है, अध्यापकों को, छात्रों को, शिक्षण संस्थानों को, शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा की पहुंच को, हर तरह से यह संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हम सब अपनी अपनी संस्थानों में जाकर के उन प्रयासों को करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख शब्दों की ओर ध्यान दें, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन, हमने पहले भी बताया कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है इसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं आज। स्वयं और स्वयं प्रभा, इन दोनों साधनों को भारत सरकार ने 2016 और 17 में शुरू किया था। 2016 में स्वयं और 2017 में स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के 34 चैनल्स हैं और स्वयं प्लेटफॉर्म पर लगभग 3000 पाठ्यक्रम हैं। ये पाठ्यक्रम 4 क्वाड्रेंट अप्रोच जो म्यूक के हैं उनके आधार पर हैं, यानी ई कंटेंट है, वीडियोज़ हैं, डिस्कशन फोरम है और अंत में इवैल्यूएशन है। इस सुविधा का लाभ आप अपने घर पे बैठकर भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव होने के कारण हम प्रश्न भी अपने पूछ सकते हैं, जिसका जवाब भी आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो यह एक महायज्ञ है, इसमें आप और हम एक साथ मिलकर के इनके परिवर्तनों को लागू करने का प्रयास करेंगे। जब हम स्वयं की बात कर रहे हैं, 3000 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सभी के हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी एक कोर्स को आप रजिस्टर कराइए और इम्तहान दीजिए और उसका क्रेडिट आपको बाद में क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। ये मूलभूत बात है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो ये बहुत ऐसा शैक्षिक प्रयोग है जिसके लाभ हैं। कोर्सेरा की भी बातचीत होती है, उसमें 11 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और हमारे पास इस स्वयं में 3 करोड़ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है इसको आप करें, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है और डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई एक विषय आप चुन सकते हैं, 2 विषय भी चुन सकते हैं और उनका इम्तहान आपको देना है। एनटीए आपको सर्टिफाई करती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला बिंदु है, मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, हम इसको आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, यानी एक डिसिप्लिन से ज़्यादा डिसिप्लिन, बीए का कोई छात्र है, वो चाहता है फिजिक्स का एक कोर्स पढ़ लें, तो जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ ये संभव नहीं है। वो चाहता है कि अकाउंटिंग का एक कोर्स पढ़ लें जो कॉमर्स में है, बीए के छात्र को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बीए का छात्र अगर ये चाहता है कि कंप्यूटर्स का एक कोर्स पढ़ लें, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज स्वयं ने यह अवसर प्रदान किया है कि हम इन किसी भी पाठ्यक्रमों को पढ़ सकते हैं, इम्तहान दे सकते हैं, इम्तहान में पास होकर के इसके क्रेडिट को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ये जो क्रेडिट शब्द है, ये इस संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल है। अभी पिछले माह नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का एक ड्राफ्ट आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसमें आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप इसमें अपने विचार अभिव्यक्त करें, जिससे उसका अंतिम रूप दिया जा सके। क्रेडिट मतलब कोर्स आधारित 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे का एक पाठ्यक्रम है जिसको आप पढ़ें, पास हों और उसका परिणाम आपके साथ रहेगा।
पढ़ने का माध्यम बहुत आसान है, स्वयं प्रभा। ये जो चैनल पे हम बातचीत कर रहे हैं ये बाद में यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो जाएगा। आपकी सुविधा अनुसार एफोर्डेबल, चूँकि संपूर्ण जो 5 या 6 दिन की हम लोग से बातचीत हो रही है ये भी निःशुल्क है और ये ज्ञान का आदान प्रदान है। और आपको अपने संस्थानों में इन अभिनव प्रयोगों को करना है। अगर आपको बीए के कोर्स को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है और आपने सोच रखा है कि हमें कंप्यूटर का एक कोर्स शामिल करना है, एक कोर्स कॉमर्स का शामिल करना है, एक कोर्स फिजिक्स का शामिल करना है, एक कोर्स जियोलॉजी का शामिल करना है, अगर आपका विवेक ये कहता है कि ये सब आपके बीए के पाठ्यक्रम को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने में मदद करेगा, तो आप किसी का इंतजार मत करिए। केवल बच्चों से कहिए कि वो स्वयं अपने भारत सरकार का पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। एक कोर्स का, 2 कोर्स का फ्री रजिस्ट्रेशन है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है और उसके बाद डिस्कशन करें और अंत में इम्तहान दे करके, ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तहान होते हैं, अगर पास हो गए तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। पास बहुत लोग होते हैं। उम्र का कोई बंधन नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कोई बंधन नहीं है। हम इसको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये उपलब्ध संसाधन हमारे पास है, जिसके लिए आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक, अतिरिक्त क्लासरूम, अतिरिक्त परीक्षा के संसाधन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। अगर आपको होलिस्टिक बनाना है, यानी इसमें स्किल को भी शामिल करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपके साथ खड़ा है, उच्च शिक्षा के साथ खड़ा है। वो ये कहता है कि आपके पाठ्यक्रमों में स्किल कंपोनेंट को शामिल करिए और उस स्किल का सर्टिफिकेशन के लिए भी एक एजेंसी आ गई, वो भी राष्ट्र की एजेंसी है, अभी हाल ही में क्रिएट हुई, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये दोनों संस्थाएं आपके स्किल कंपोनेंट को जोड़ सकती हैं। मान लिया आपने कहा कि हमारे बीकॉम पाठ्यक्रम में 20% स्किलिंग शामिल करना है। अभी तक 80% या 100% पूरा थ्योरेटिकल था, आपने कहा 20% स्किलिंग शामिल करना है। NCVT भी और NSDC भी दोनों ही आपकी मदद करेंगे और आपको 20% क्या होना चाहिए वो उसमें शामिल कर सकते हैं। आपको लगा कंप्यूटर का कोई कोर्स शामिल होना चाहिए, मशीन ट्रांसलेशन का कोई कोर्स शामिल होना चाहिए, शामिल हो सकता है। और 20% को उसको शामिल करके आपने कहा हमारा अब ये बीकॉम पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगा, 80% हमारा थ्योरी है, 20% स्किलिंग आ गया। और ये स्किलिंग मनमाना नहीं है, ये स्किलिंग NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त है, NSDC द्वारा अनुशंसित है, जो दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं जो स्किल ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करा रही हैं। अप्रेंटिसशिप का सपोर्ट हो रहा है। होलिस्टिक एजुकेशन हमें करना है, इसमें भी आपको अतिरिक्त रूप से बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संस्थानें लगातार ये कोशिश कर रही हैं। इन्होंने अब तक जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को बना करके उसकी एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट को देखिए। और कई संस्थानों को प्रायर लर्निंग को भी इन्होंने क्वांटिफाई करने का प्रयास किया है। हमारी जो पाठ्यक्रम होगा वो स्किल ओरिएंटेड हो गया, होलिस्टिक भी हो गया, मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत पहले 2016-17 में ही हम लोग को एक सर्कुलर आया था UGC से कि हम लोगों को क्रेडिट ट्रांसफ़र करने चाहिए। हम लोगों ने उसको एकेडमिक काउंसिल से पास भी करा लिया था, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं हम लोग चूक हो गए। इसको कर लीजिए। इस क्रेडिट से जुड़ी हुई एक और बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी
बैंक में 5-5 रुपया जमा करने से 5 बार जमा किए तो 25 रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस बैंक में, ये एकेडमिक बैंक है, इसमें आप एक एक कोर्स पास करेंगे, वो कोर्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और उस पर एनकैशमेंट, मतलब जब आप 15, 20, 25 कोर्स जब पास कर लेंगे तो आपको कोई न कोई संस्थान कोई न कोई डिग्री आपको देगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर किसी वर्तमान संस्था में आप काम कर रहे हैं तो 50% आपकी संस्थान जो डिग्री देगी और बाकी 50% आप बाहर से उन क्रेडिट्स को ले सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? हम क्रेडिट्स को ले सकते हैं, चाहे वो स्किल के क्रेडिट्स हों, चाहे वो स्वयं के क्रेडिट्स हों। और ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है ये सारा का सारा आपके बैंक में जमा होगा। अगर अभी आपका एनकैश नहीं हो रहा तो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। पहले हम लोग बीए में एडमिशन लेते थे तो बीए के 3 साल के पाठ्यक्रम पास होने के बाद आपको डिग्री मिलती थी। अगर 20 पाठ्यक्रम है तो 18 पाठ्यक्रम पास हो गए, बाकी 2 आप पास नहीं हो पाए, तो आपका सारा का सारा प्रयास बेकार हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 18 आपने पास कर लिए हैं तो 18 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। 2 आप बाद में कर लीजिएगा, बाद में जुड़ जाएंगे। 18 पाठ्यक्रमों के पास होने का जो प्रयास है वो निरर्थक नहीं होगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। संस्थानों को निर्देश दिया जा चुका है कि वे अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी मई में ही ये सर्कुलर इशू हुआ था और जो हमारे पास जुलाई तक के आंकड़े हैं, 32 लाख बच्चों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी उनका बैंक अकाउंट खुल गया है, एकेडमिक बैंक अकाउंट खुल गया है। आप जो जो पास करते जाएंगे उस अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और जब आपको लगा कि 18, 72 क्रेडिट या 66 क्रेडिट जो भी हो गए हो, उस पाठ्यक्रम की मान्यता के अनुरूप आप उस कैश करा लीजिए, फिर आपको एक डिग्री मिल जाएगी और बाकी बचे हुए क्रेडिट्स को आप एक्युमुलेट करिए। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसका एक आसान तरीका निकाल लिया है जो ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। बीए में पहले साल के बाद आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। बीए के फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम आप पास कर लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए। अभी तो मैं आपसे कह रहा था कि बीए के अगर आपने 20 में से 18 पास कर लिए तो भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि अगर 1/3 पास कर लिया तो सर्टिफिकेट, 2/3 पास कर लिया तो डिप्लोमा, और पूरा पास कर लिया तब डिग्री। यानी कुछ भी ना हो, अगर आप 18 पास कर चुके हैं तो इसका मतलब है कम से कम आपको डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा, डिग्री ना मिल पाए। यानी आपका प्रयास, एक्चुअली राष्ट्र भी इसमें आपकी शिक्षा में योगदान देता है। राष्ट्र का भी जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो रहा है और आपको भी, छात्रों को भी उनके प्रयासों का परिणाम दिखने लगे और ये उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। एंट्री है फिर एग्जिट है। 1 साल बाद आपने बीए में पढ़े, छोड़ दिया, नौकरी लग गई, फिर 1 साल बाद लौट के आए, फिर आपने नौकरी ज्वाइन किया, फिर आपने चले गए। तो ये जो प्रक्रिया है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, कई विश्वविद्यालयों ने शुरू कर दिया है, इग्नू ने भी शुरू कर दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। और नहीं शुरू हुआ तो आप शुरू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। सर्टिफिकेट देना 1 साल के बाद, डिप्लोमा देना 2 साल के बाद, 3 साल के बाद डिग्री देना। ये इसी प्रकार से पीजी में भी हम लोग करते क्या थे कि अगर पीजी के दोनों साल नहीं पढ़ पाया तो बाहर हो गया, ऐसा नहीं। 1 साल पढ़ लिया, सर्टिफिकेट दे दीजिए, दूसरे साल के बाद पूरी डिग्री दे दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हम लोग देते हैं और फिर डिग्री देते हैं। ये संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रोन्मुखी है, छात्र के हितों को ध्यान में रख रही है। संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है इसमें।
वोकेशनल और स्किल कंपोनेंट भी इसमें शामिल हो सकता है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स अफोर्डेबल हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पर भी महत्व दिया है। पहले जमाने में ऑनलाइन शिक्षा नहीं थी। 2018 में भारत सरकार ने ऑनलाइन रेगुलेशंस बनाए और 2020 में पहली बार आपने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू किया और अब तक 400 से ज़्यादा ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा संस्थाएं अब इससे जुड़ गई हैं। ऑनलाइन अफोर्डेबल है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमबीए पॉपुलर है और लोग घर बैठे 4 क्वाड्रेंट अप्रोच के तहत इन डिग्रियों को प्राप्त करते हैं। यूजीसी ने इसमें कुछ शिथिलताएं भी दे रखी हैं। जिन्होंने एनआईआरएफ में फर्स्ट 100 या 200 में पिछले 3 सालों में 2 साल अपना स्थान प्राप्त किया है, या नैक का 3.25 है, तो कोई अलग से परीक्षण नहीं करा रहे हैं, कोई अलग से आपकी जांच नहीं होगी। आपको परमिट कर रहे हैं कि 13 प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं, 3 यूजी और 10 पीजी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, उद्देश्य यही है कि हमारी पहुंच उन स्थानों पर हो जहां शिक्षा की लौ नहीं पहुंची है। और यहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक और बात कही है, विदेशों में हमारी पहुंच। हमें पहुंचना है और विदेश में हमारी शिक्षा का हमेशा बोलबाला रहा है। हमारी शिक्षा के महत्व को विदेशों में पहचाना गया है। ऑनलाइन होंगे तो अपने आप ही विदेश में पहुंच जाएंगे। कई विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बना रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए, और लगातार विदेश से जुड़ने वाले छात्रों की संख्या ऑनलाइन, हमारे कैंपस भी बाहर जा रहे हैं, ऑफलाइन भी विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय कई देशों में हैं और वो चाहते हैं कि भारत की शिक्षा उनको मिले। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। बहुत से देश चाहते हैं कि जिस प्रकार की छात्रोन्मुखी, होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, वोकेशनल एजुकेशन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये उन तक भी पहुंचे। और लगातार इस दिशा में भी हमारे परिणाम सुखद रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात थोड़ी होती है। हमारे जो विदेश में डायस्पोरा है वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत की संस्कृति, भारत की विधाएं, उनको हम किस प्रकार से उन तक पहुंचाएं। और शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है और ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत बड़ा माध्यम है। इसीलिए कई संस्थानों ने ज्योतिष, कालगणना, वैदिक मैथमेटिक्स, वेद विज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश, संगीत, कला इत्यादि क्षेत्रों में अपने ज्ञान को विदेशों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इससे हमारी पहुंच बाहर काफी होने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है मातृभाषा में शिक्षण।
इसमें अलग से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में, हाँ हिंदी में पढ़ा सकते हैं, तमिल में पढ़ा सकते हैं, तेलुगु में पढ़ा सकते हैं। कोई विवाद नहीं है कि हिंदी में ही पढ़ना है, कोई विवाद नहीं है कि अंग्रेजी में पढ़ना है। हम लोग चाहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मातृभाषा में शिक्षण है। तमिल में अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, अगर उसको अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी में अच्छा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उससे अवसर दिया जाए कि मातृभाषा में अगर तुम्हें शिक्षण मिले तो बेहतर होगा। कारण मातृभाषा, माँ की भाषा बचपन से कम 3 से 4 वर्ष पूर्व ही वो प्रयोग करना शुरू कर देता है। बाकी जो क्लासरूम की भाषाएं हैं वो जब 5 साल या 6 साल का हो जाए तभी वो क्लास में जाता है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षण एक बहुत बड़ा प्रयोग है और विश्व के बहुत से देश अपनी मातृभाषा में ही शिक्षण कराते हैं, चाहे वो इनोवेशन की दृष्टि से हो, चाहे वह शोध की दृष्टि से हो। दोनों ही दृष्टि से अच्छे वैज्ञानिक बनना है, अच्छे शिक्षक बनना है, अच्छे प्रशासक बनना है, मातृभाषा में शिक्षण निश्चित रूप से लाभकारी होता है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा मिले। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में MBBS, जिसके बारे में प्राय कहा जाता था अंग्रेजी में ही पुस्तकें उपलब्ध है, हिंदी में पुस्तक है ही नहीं, सारे किताब खाली हिंदी में नहीं मातृभाषा में उपलब्ध कराई गई। मातृभाषा में पढ़िए। AICTE ने इंजीनियरिंग के बुक्स को मातृभाषा में उपलब्ध कराया, पहले साल के अब दूसरे साल के उपलब्ध करा रहे हैं। मातृभाषा में पुस्तक हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक प्रयोग किया था 6 जनवरी से, जो BA सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, इनको तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमीस में पढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। पढ़ाना तो सबसे आसान है और वहीं के प्राध्यापक विषय को पढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों ने 3000 वीडियोस बना लिए हैं। ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप सभी शिक्षक हैं, अपनी मातृभाषा में अपने ज्ञान को अपने छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। और एक और काम आप कर सकते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध नहीं है। टेक्स्ट बुक्स लिख सकते हैं। हम सभी शिक्षक हैं, अपनी अपनी मातृभाषा में अपने अपने बच्चों को मातृभाषा में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हम पाठ्य पुस्तकों को लिखना प्रारंभ करें। हमें मालूम है कि बहुत से प्रांतों में इस दिशा में बहुत काम हो चुके हैं। विशेष रूप से सारे मातृभाषाओं में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उस पर तो पाठ्यपुस्तकें उनकी लैंग्वेज में हैं ही, साथ ही सोशल साइंसेस की अधिकांश क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें मिल रही हैं। साइंस में थोड़ा कम है, बढ़ावा ले लेंगे। कंप्यूटर साइंस में शुरू हो गया है, आपने देख लिया कि AICTE ने कर दिया है। MBBS में जब शुरू हो गया मातृभाषा में, तो बाकी BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom में क्या दिक्कत है? जब हम सबको ये पता है कि मातृभाषा में शिक्षण से बौद्धिक विकास बेहतर होता है,
हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारी तर्क शक्ति, हमारी शोध करने की जो क्षमता या नव प्रवर्तन, इनोवेशंस करने का जो प्रयास है, ये हमें बेहतर परिणाम देगा। हम क्यों ना करें? अगर हम 15 लाख शिक्षक हैं, हम अगर संकल्पित हो जाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिंदी, असमीज में पाठ्यपुस्तकें लिखेंगे, तो हमारा शिक्षण मातृभाषा में होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को किताबें मिल जाएंगी, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनोवेशंस को बढ़ावा देती है, नव प्रवर्तन। ये क्या है? ये हमारे मस्तिष्क की शक्ति है। हमारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था आज हमारी तर्क शक्ति को आगे बढ़ाती है, लेकिन कल्पना शक्ति को नहीं। और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों का बेहतर समन्वय होना चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में उपलब्ध है। बायां तर्क, दाहिना कल्पना, दोनों की आवश्यकता है। इमेजिनेशन की बहुत आवश्यकता है। इनोवेशंस अगर आप देखेंगे, अधिकांश देशों में इनोवेशंस साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं, नई चीज़ों के, नई प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, केवल तर्क शक्ति के साथ साथ कल्पना शक्ति को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कला, संगीत, साहित्य, ये ऐसे विषय हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? हमें मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स बनाने हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, और ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मस्तिष्क की पूरी शक्ति का प्रयोग करिए, इनोवेटिव हो जाइए। अगर आप देखें, हमने जो अब तक बातचीत किया है, ये बातचीत हम सब के लिए बहुत प्रासंगिक है। डिजिटल एजुकेशन, स्वयं प्रभा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट फ्रेमवर्क, इंटरनेशनलाइजेशन, मातृभाषा में शिक्षण, इनोवेशन, कुछ भी आप कहें, हर क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स लिखना है अपने बच्चों के लिए, विदेशी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में हम अपना योगदान दे सकते हैं। यही इस प्रकार की शिक्षा नीति का सार है। हम पूरे प्रोग्राम के पर विचार न करके हम पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दे रहे हैं, और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ 2016 से चल रही है, कोई नया नहीं है, और इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हमने आपको एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ओवरव्यू दिया है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है। अपने आप हो जाए कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन हम अपने मस्तिष्क को खुला रखें। छात्र केंद्रित, शिक्षक के को बेहतर अवसर प्रदान करने वाली इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग अपने स्तर पर, अपने विश्वविद्यालय, अपने महाविद्यालय, जहाँ कहीं भी संभव हो, उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज ही हमने देखा, एक कार्यक्रम था सुबह, वैदिक गणित में 7 दिन की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। संभव है, अब सब संभव हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी सोच को बढ़ावा दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे पास है। पाश्चात्य का भी कोई चीज़ हो,
उसको भी हम शामिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शिक्षा उन्मुक्त हो रही है, हमारे मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा रही है। आप सब इस राष्ट्र के अभियान में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।